Assalamu alaikum. We're going to be resuming with sets के past paper questions. Take a look over here. These two topics were done in the first video. These two were done in the second video. A past paper question came in the third video. This is part 3. Hopefully this is going to be very comprehensive. It won't leave any type of questions out. But in case there are any questions which are still left, I'll make another video on that. Here we go. This question में वो कह रहा है, this is a recent past paper question. 40 students take part in 3 activities: art, dancing and gardening. इसके subdivision है. Read this out. 5 do not take part in any of these activities. 12 do art only. 4 do dancing and gardening but not art. 1 does all 3 activities. One by one इसको करते हैं. 5 do not take part in any of these activities. अगर किसी activity में नहीं है तो 5 तो यहाँ बाहर हो गया. 12 do art only. Art only A वाले circle में आएगा but does not include this part. It is only this part. 4 do dancing and gardening but not art. This is 4. 1 student does all 3 activities. यहाँ पे overlap करेगा जहाँ पे सब circles हैं. That is an easy 2 marks, right? The second part says divide on the Venn diagram, shade the region. On the Venn diagram, the ratio x, y, and z is 1, 2, 3. X, y, z की जो ratio है that's 1, 2, 3. Find the value of x, y, and z. अब total students कितने थे? 40. What I'll do is I'll say okay 40 minus, I'll start subtracting everything else. 40 minus 5 minus 12 minus 1 and minus 4. What am I left with? If you subtract these, if you have a calculator, please pull it out and subtract it. 18. अब 18 स्टूडेंट्स हैं जो एक्स वाई जी में डिवाइड होंगे. वाई बिकॉज आप नोट करो इन 3 सर्कल्स में डिवाइड क्यों होने, बिकॉज 40 में से 18 रह गए, बाकी सब डिवाइड हो चुके हैं. एक्स वाई और जी में ये 18 डिवाइड होंगे. अब किस रेशियो में डिवाइड होंगे? 1 पार्ट एक्स, 2 पार्ट वाई, 3 पार्ट जी. What is 1 plus 2 plus 3? Why am I adding these 3 numbers? कि फॉर इंस्टेंस अगर हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट आया, अगर आप किसी का वीक है, अगर हम डिवाइडिंग अ सेट क्वांटिटी ऑफ कैंडीज लेट्स से इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, तो पहले बच्चे को 1 मिल रही है, फिर दूसरे को 2 गुना उससे ज़्यादा मिल रही है, तीसरे को पहले से 3 गुना ज़्यादा मिल रही है. तो बेसिकली एडिंग देम अप टेल्स अस कि कितने पार्ट्स हैं. तो वी हैव 6 पार्ट्स. अब 18 इज टू बी डिवाइडेड इनटू amongst 6 different parts. ये वैल्यू क्या आ गई 3. अब ये 3 क्या शो कर रहा है कि एक जिसके पास एक पार्ट है उसके पास एक्चुअल क्वांटिटी क्या है. जब कैंडीज भी डिवाइड करते थे तो वी डोंट एग्जैक्टली से कि जिसको एक कैंडी दो, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3 दैट इस रेशियो में डिवाइड करनी. तो फर्स्ट पर्सन गेट्स 2 और दूसरी रेशियो इज 2, तो पहले का 2 गुना होगा. लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन. इफ इट्स 1 2 3 एंड द फर्स्ट किड इज गेटिंग 2 कैंडीज, दिस इज जस्ट द रेशियो. This is just the ratio. And this is the actual value. The first kid is getting 2 and the second kid is supposed to get 2 times of this kid. तो इसकी 4 होगी वैल्यू और इसकी 6 होगी. तो ये जो 6 है ये बता रहा है कि टोटल पार्ट्स कितने हैं. तो हमने 18 स्टूडेंट्स को 6 से डिवाइड किया, ये 1 की वैल्यू आ गई जिसकी रेशियो 1 लिखी हुई थी. ये उसके पास एक्चुअल वैल्यू क्या है? दैट्स 3. If I erase this 1 is basically representing the value, so this 3 representing this value. 1 की जो रेशियो है 3 है. अगर 2 की क्या होगी? दैट्स गोइंग टू बी 6. और 3 की क्या वैल्यू होगी? बेसिकली यू सपोज टू मल्टीप्लाई दीज रेशियोज विद 3. 1 3s are 3, 2 3s are 6 and 3 3s are 9. हमारे एक्स वाई जी की वैल्यूज क्या आई? 3 6 and 9. 3 6 and 9. Let's confirm that answer as well. Here we go. 3 6 and 9. On one subset in the Venn diagram in part A has no students. वो कह रहे हैं कहाँ पे, कौन सी ऐसी जगह है, ऐसी कौन सा सबसेट है जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है. तो इफ यू टेक अ लुक, ये रहा 0. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट इन सेट नोटेशन? या हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट इन सेट नोटेशन? ये वैल्यू अगर हमें शेड करनी हो सिर्फ ये जगह, हाउ वुड यू डू दैट? यू कैन से A इंटरसेक्शन G because that will give us the entire part, and then intersection D complement. I'll tell you what I mean. We only need this part, right? We'll first of all say A intersection G. A intersection G से ये सब आ जाएगा. Then we need to get rid of this part. उन्होंने ये जगह कहा थी ना जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं है. How can we get rid of this part? We're going to say D complement. D से बाहर रहना है. Intersection with D complement. If we stay out of D, how will we do that? We'll write it as A intersection G and intersection D complement. If this doesn't make sense, watch my previous video. It has this information in it.
A intersection D intersection G complement. Let's keep on checking our answers. A intersection, wait, sorry, इन दोनों का intersection था. I just have to write this over here and this over here. If it causes confusion, let me tell you what happened. जो हमने डिस्कस किया था वही है, बट आई जस्ट रोट इट इन रॉन्ग वे. ए इंटरसेक्शन जी गिव अस द एंटायर थिंग, दिस पार्ट. हमने फिर डी से बाहर रहना था, रिमेंबर. तो ए इंटरसेक्शन जी गिव अस दिस एंटायर पार्ट. टू रिमूव दिस पार्ट वी सेड इंटरसेक्शन डी कॉम्प्लीमेंट. आई जस्ट messed up the order at first. Now this is the correct answer. A intersection G complement intersection D. The question says, D part says number of elements in D union G. D union G means combine and then intersection E. अब D union G क्या होगा? Let me erase this. D union G would be ये और ये सब मिला दिया. D union G. Now the question says intersection with A. कहाँ पे ये ए के साथ ओवरलैप कर रहा है? सिर्फ इतनी सी जगह पे, ये वाला. इसमें जो वैल्यूज हैं वो हमारा आंसर है. एक्स की वैल्यू हमारी क्या थी? 3. एक्स इज वन पार्ट और वन पार्ट का आंसर क्या निकला था? 3. तो ये 3 है और ये 1 है और ये वैसे ही 0 है. तो 3 + 1 विल गिव अस 4. 3 + 1 gives us 4 and there we have it. Our value of x + 1 evaluated. So that's correct. Let's move on to the next question. This is out of June 2017 P1 question 7. Use set notation to describe the shaded set. इसको हम कहेंगे A intersection B complement. B complement मीन B के बाहर और वो A के साथ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो let me tell you what I mean. A basically means all of this, ये पार्ट भी, बिकॉज ये सारा A है. इंटरसेक्शन B complement. B complement क्या है? B से सब कुछ बाहर. अब B से बाहर तो ये भी है. अब वो कह रहा है ये ओवरलैप कहाँ पे कर रहा है. तो कहाँ पे आपको डिजाइन, दो किस्म के डिजाइन इकट्ठे मिल रहे हैं. क्रिस क्रॉस कहाँ पे हो रहा है? सिर्फ इस जगह पे, इस जगह पे. ठीक है. दैट्स ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. यूज सेट नोटेशन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट अबाउट सेट सी एंड डी. यार जब भी सेट, एक सेट दूसरे का हिस्सा हो तो दैट्स सबसेट. ठीक है. उस पर भी मैंने पीछे प्रीवियस सेट पार्ट 2 में प्रॉब्ली सबसेट और प्रॉपर सबसेट पे वीडियो बनाई हुई कि इनमें डिफरेंस क्या है. बट दिस इज कंप्लीटली इनसाइड सेट डी. So C is a smaller part of D, so we're going to say C is a proper subset of D. That's it. Here we go. We've been given a question जहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, M है और P है. यूनिवर्सल सेट में क्या है? 2 से 12 तक वैल्यूज है. M है मल्टीपल्स ऑफ 3 और P क्या है? दैट्स अ प्राइम नंबर. अब इनको बहुत ज़रूरी है कि हम पहले लिख लें. तो यूनिवर्सल सेट का मैं वैल्यू लिख देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. This might seem like a fruitless exercise, but it's important कि आप इनको लिख लिया करो. It helps in solving multiples of 3, 3, 6, 9 and 12. हम 12 पे क्यों रोक रहे हैं? बिकॉज हमारी लिमिट है यूनिवर्सल सेट की. ठीक है. और P की वैल्यूज क्या है? प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11 और 13 जो है वो रेंज से बाहर होगी. 2 3 5 and 7. The question says find, sorry, A is an element of M intersection P. M intersection P कॉमन चीजें जो M और P की हैं. कॉमन चीजें इसमें क्या है M और P में? ये तो भाई A की वैल्यू क्या है? वो यही 3A की वैल्यू है जो M और P का जो इंटरसेक्शन है. M यूनियन P होल कॉम्प्लीमेंट. M यूनियन P का मतलब है M और P को कंबाइन करें और जो कंबाइन करने के बाद वैल्यूज हैं वो नहीं चाहिए. M और P, तो यहाँ से 3 6 9 और 12 काट दिया. ये M की वैल्यूज यहाँ से काट दी. Why? I'll tell you what's happening. M union P basically means in M और P को कंबाइन कर लें तो we have 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 9 11 and 12, right? Let me check. 2 3 5 7 and 11 यहाँ पे आगे 3 6 9 and 12.
दैट्स एम यूनियन पी। अब ये तमाम का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये चीज़ें नहीं चाहिए, तो इनको आप यहाँ से कट आउट करना शुरू कर दो। वी डोंट नीड अ 2, वी डोंट नीड अ 3, 5 भी गया, 6 भी गया, 7, 9, 11 भी गया, 12 भी गया, व्हाट आर वी लेफ्ट विद 4, 8 एंड 10। हमारा इसका आंसर क्या होगा 4, 8 एंड 10, 4, 8 एंड 10। ठीक है, सिंस इट डज नॉट से a set, remember to write your answers over here. Okay, in a survey 90 people were asked, do you own a car or do you own a bicycle? 27 ने कहा जी they only owned a bicycle, 13 only, 27, wait, a total 27 people said they owned a bicycle, 13 owned only a bicycle. अब ये दो pieces of information थोड़ी different हैं, they might look similar but take a look over here. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे दो सर्कल्स बना लोगे, ओहो, एक बाइसिकल का और एक कार का, बाइसिकल बी एंड कार सी। ठीक है, 27 ओनली, 27 पीपल ओन्ड अ बाइसिकल। अब 27 कंप्लीट सर्कल का है, 13 ओन्ड ओनली अ बाइसिकल, ये यहाँ पे आएंगे बिकॉज ये जगह वो जो जिनके पास कार भी है। तो अगर 13 निकल गए, 27 टोटल थे, तो रिमेनिंग कितने होंगे इस पार्ट में 14। हाउ डू आई नो दैट 27 माइनस 13 गिव्स अस 14, ये 14 यहाँ पे आ गया। लेट मी राइट इट लिटिल क्लियरली, 14। 11 people own neither a car nor a bicycle, ना bicycle and a car है 11 के पास, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22। By drawing a Venn diagram we've done that. Find how many people said they owned a car. तो सबसे पहले तो हमने ये वैल्यू निकालनी है। ओन्ड अ कार का मतलब है, ओन्ड अ कार लिखा हुआ है कि आपने कंप्लीट सर्कल कार वाला बताना है, ये सारा। ठीक है, जो कार वाला सर्कल है स्टार्ट फ्रॉम हेयर, इंक्लूड्स 14 एज वेल। अब x को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमने एक इक्वेशन बनानी होगी, इन्वॉल्विंग ऑल ऑफ दीज। वी कैन से 13 प्लस 14 प्लस x प्लस 11 इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल देयर आर, व्हिच इज 90। If you subtract all of these values from 90, what do you get? 52. x की वैल्यू आ गई 52। Now this value is 52। बट उन्होंने तो कहा कि जो कार ओन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कार ओन करते हैं, ओनली कार नहीं कहा गया, ओन्ड अ कार कहा गया। हो सकता है उनके पास बाइसाइकिल भी हो, तो आप ये 14 भी ऐड कर दोगे, तो 52 प्लस 14 दैट गिव्स अस 66। दिस इज आवर आंसर। This is June 2012, P2, question number 6. Once again, list them out. If you find this to be a similar question, you can skip this. इसका part 3 बहुत ज़रूरी है। तो जी हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. Let's add commas into them. Here we go. A इज अ प्राइम नंबर, ए को भी लिस्ट कर लेते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से, अपने आप से और नंबर 1 से डिविजिबल हैं। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 12 नहीं, 13 यस, एंड बी मल्टीपल्स ऑफ 3। मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या है, यू गॉट 3, 6, 9 एंड 12। इससे आगे हमारी रेंज में नहीं है। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी, बट फिर उनका कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी क्या है, पहले वो फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी में आपने इन दोनों को कंबाइन कर लेना है। वी गॉट 2, 3, 5, 7, सॉरी इधर 6 भी था, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 and 13. Do not forget to put in commas over here, very important. अब लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो कह रहे हैं इसके अलावा जितने भी नंबर्स हमें वो चाहिए। तो आप ये क्या करोगे, वन बाय वन यू गोना स्टार्ट कैंसिलिंग और कटिंग दीज नंबर्स आउट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। तो 2, 3, 5, 5, 6, 7, 9, 11, 12 एंड 13, ये जब काट दिए
जो रह गए हैं दैट्स 4, 8, 10 एंड 14. दैट इज आवर आंसर. लेट्स सी इफ वी हैव द मार्क स्कीम ओवर हियर. 4, 8, 10 एंड 14. दैट्स परफेक्ट. ठीक है. अब फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एन स्टैंड फॉर नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी. ए और बी के अंदर जो इकट्ठे हैं तो कौन कौन से हैं जी? 3 है और 6 भी नहीं है, 9 भी है, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है. तो एक ही नंबर है जो दोनों में कॉमन है. लेट्स कंफर्म दैट आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट. यस इट इज एक. ठीक है. गिवन दैट C is a subset of A and N of C is 3, B intersection C is empty set, list the members of a possible set C. अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ लिंक्ड ही है. तो आप ये बताओ कि C जो है वो एक सबसेट है A का, वो इसमें से ही बना हुआ है. N of C is 3, इनमें से 3 एलिमेंट्स लिए गए हैं. अभी तक अब इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई कि हम बना सकें. B इंटरसेक्शन C is empty set, उसका B के साथ कोई लेना देना नहीं. C जो हमने बनाना है ना, उसकी B की वैल्यू कोई नहीं होगी, इनमें से कुछ भी नहीं होगा. लिस्ट द मेंबर्स ऑफ पॉसिबल सेट C. आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट द members of C would be. Okay, C is a subset of A, तो इसमें से वैल्यूज होंगी. N of C is 3, सिर्फ 3 वैल्यूज इसमें से होगी. B intersection C is empty set, तो C की वैल्यूज जो हैं वो B में से तो नहीं हो सकती. 3, 6, 9 और 12 नहीं हो सकता. तो शुड बी क्रॉस दीज आउट. 3, 6, 9 और 12 तो नहीं हो सकता. Then they think C is a subset of A, तो we are left with 3 तो हट गया बिकॉज 3 ऊपर भी नहीं था. We left with 2, 5, 7, 11 या 13. 2, 5, 7, 11 और 13. अब इसमें से आपने कॉम्बिनेशन बनाना है. वी कैन से ओके 2, 5, 7 हो सकता है या 5, 7, 11 हो सकता है, और वी कैन हैव 7, 11, 13. देयर मल्टीपल कॉम्बिनेशन बट दे से लिस्ट द मेंबर्स ऑफ अ पॉसिबल सेट सी. तमाम पॉसिबल ऑप्शन नहीं, एक सेट सी के अंदर कोई ऑप्शन बता दें तो आपने इनमें से ये भी बता सकते हो इसके अलावा भी हैं. वी डिड नॉट हैव टू कट देम आउट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट. आपने सिर्फ सेट ए में से ही कट करना था और आपका आंसर निकल आएगा. वही वो कह रहे हैं एनी 3 नंबर्स आउट ऑफ 2, 5, 7, 11 या 13. तो ये भी हमारा ठीक हो गया. Over here we've got a question of shading. Shade the set P union R intersection Q complement. अब इसको करने के लिए हमने जो इस प्लेलिस्ट में जो पार्ट 2 है उसमें हमने 3 सर्कल्स वाली शेडिंग नहीं की. दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. हियर यू गो. P union R is everything of P and everything of R combined. राइट. इंटरसेक्शन Q complement. Q complement का मतलब है Q से बाहर सब कुछ. Q से बाहर जो ये रहा सब कुछ. लेट्स डू दैट विद अनदर कलर. Q से बाहर रहा ये सब कुछ. I'll repeat what's happened over here so far. P union R है सब कुछ P का और सब कुछ R का कंबाइंड. तो हमने ये पार्ट भी उसमें कर दिया था. ये P union R के अंदर ये भी था. ठीक है. अब वो कह रहे हैं where does it overlap with Q complement. Q complement ये शेड किया हुआ है. कहाँ पे आपको दोनों डिजाइन मैच करते हुए ओवरलैप करते हुए कॉमन ग्राउंड उनका क्या है? तो सिर्फ ये जगह. राइट. ये जगह हट जाएगी. तो we're supposed to shade that. P union R intersection Q complement is going to be this part only. ये और ये. Make sure when you're doing it in an exam तो आप completely fill करके और इस empty space नहीं छोड़नी. ठीक है. Do not include this part in this question. Part C says a group of 80 people attended a recreation center on one day. Of these people, 48 used the gym, 31 used the swimming pool, and 17 used neither the gym nor the swimming pool. ये आ गए हमारे जिम वाले और फिर स्विमिंग पूल वाला SP लिख लेते हैं. 17 यूज नीदर जिम नॉर स्विमिंग पूल. 17 इसके बाहर है. 48 यूज द जिम. हमें ये कॉमन जगह नहीं पता, उन्होंने नहीं बताया यहाँ पे. 48 जिम वाले बताए हैं. तो ये रिमेनिंग कितना होगा? 48 माइनस एक्स. वाई? बिकॉज 48 कंप्लीट जिम का सर्कल है. ये एक्स कॉमन ग्राउंड है जो दोनों चीज़ें करते हैं. स्विमिंग पूल के बीच सिर्फ जो प्योरली स्विमिंग पूल में 31 माइनस एक्स हो जाएगा. व्हाट यू विल डू इज you will write 48 minus x
plus x, I'm adding all of these basically, plus 31 minus x is plus 17 as well is equals to 80. अटेंड इन सब ने किया था 80 ने, लेकिन उनमें से 17 कहीं भी नहीं गए थे, तो वो भी हम इस इक्वेशन में ऐड करेंगे. Just let me write this clearly. Here we go. अब आप देखो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया. माइनस एक्स इज इक्वल टू, इफ यू टेक ऑल ऑफ दीज नंबर्स ऑन द अदर साइड, 48, 31 एंड 17, 80 में से माइनस कर लें तो व्हाट डू वी गेट? 48 minus 31 minus 17, 80 minus 48 minus 31 minus 17, we left with negative 16. अब सिंस नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव से कट गया, we left with 16 only. 16 क्या है? Find the number of people who use both the gym and the swimming pool. ये common ground और ये both वाला आंसर हमारा 16 आ गया. All right, last question. Here we go. In a survey, number of people were asked, do you own a car? Do you own a bicycle? And the Venn diagram shows set C of car owners, B is for bicycle owners, PQX उसके अंदर division हुई हुई है of how many people own a car or a bicycle or both. 11 own neither a car nor a bicycle, hence it's out over here. The question over here says write down the value of P in terms of X. आपका आंसर जो है वो नंबर्स में नहीं आएगा, अल्फाबेट्स में आएगा, लेटर्स में आएगा, वेरिएबल्स में. टोटल ऑफ नंबर 66 पीपल ओन अ कार. अब 66 पीपल ये ओन अ कार, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा. नाउ द क्वेश्चन सेज 4 टाइम्स एज मेनी पीपल ओन ओनली अ कार. अब ये ओनली बहुत ज़रूरी है. ओनली अ कार जब वो कहते हैं तो व्हाट आर दे रेफरिंग टू? ओनली अ कार रेफर्स टू ओनली दिस पार्ट. ठीक है. 4 टाइम्स एज मेनी पीपल ओन ओनली अ कार, तो वो हम कह सकते हैं ओनली अ कार वाली पी है. पी इज इक्वल टू 4 टाइम्स दैट ऑफ दोज हु ओनली ओन अ बाइसिकल. ओनली अ बाइसिकल वाले कौन से हैं? ये वाले. तो वी कैन राइट पी इज इक्वल टू 4x. ठीक है. अब ये हमारा आंसर आ गया पी का. क्यू का आंसर क्या है? क्यू के लिए वो कह रहे हैं हाउ कैन यू फाइंड पी, सॉरी क्यू, सेम एक्सप्रेशन सेम वैल्यू ही यूज करेंगे. We know that the sum of these two, P and Q, sum of these two is equal to 66. They've already told us that the entire value of P and Q is 66. So we'll say P plus 4x, sorry, P plus Q is equal to 66. हमारी P की वैल्यू कितनी है? 4x. 4x plus Q is equal to 66 and Q is equal to 66 minus 4x. This is our answer for Q. 66 minus 4x. We'll move on. A total of 27 people owned a bicycle. 27 own a bicycle. Bicycle वाली ये है. अगर वो कहता है only a bicycle, तो फिर हम इनको समझ लेते हैं कि x का आंसर है. 27 people 27 people owned a bicycle, which is q plus x. Calculate the value of x. तो q plus x is equal to 27. अब q की वैल्यू कितनी है? ये रही. We write it down. 66 minus 4x plus x is equal to 27. 66 minus 3x is equal to 27. If we take that on the other side and subtract it, we get negative 39. And let me confirm, 27 minus 66 is negative 39. You divide that, what do you get? 13. X की value comes out to be 13. Last question, the total number of people who were in the survey. Total number of people कौन से हैं? P, Q, X and 11. We will add them up. P, Q plus X plus 11. P की वैल्यू is 4x, 4x, hold on. Q की वैल्यू is 66 minus 4x. ये कहाँ से आई? ये वाली. X की वैल्यू as it is and plus 11. Now we can plug the value of x that we found out a little while ago, which is 13. If you write that down over here, 4 into 13 plus 66 minus 4 into 13, ये वाला. अब आगे plus 13 plus 11. Let's solve that and see if we get the correct answer. 4 into 13 gives us 52. 52 plus 66 minus 52 again plus 13 plus 11. So that's 66 plus 13 plus 11 basically, and that comes out to be 90. That's our answer. Perfectly spot on. That marks the end of the first series of past paper questions for sets. If there are going to be any of the questions that I feel are important, I will add them into another video. I hope it made sense. Khuda Hafiz and take care.